Hello students, on behalf of Kendriya Vidyalaya Sangathan RO Agra region, welcome you in the third part of my video on the chapter fraction and decimal. So myself Anil Kumar from KV number 3 Arakand, and the topic is fraction and decimal, and this is the third part of this video lesson. So here mainly we are going to deal about decimals. So I have discussed in my earlier video about fraction. So in this video I am going to discuss about decimals. Now in this video, what I am going to tell you, I am going to tell you about the concept of decimal, then how to multiply a decimal number with a whole number or another decimal number, and similarly by 10, 100 and 1000, etc. So, and again how to divide a decimal number by another decimal number or a whole number, or by 10, 100 and 1000, by 10, 100 and 1000. So students देखिए, if we are standing on a weighing machine, क्या आपका वजन हमेशा 11 और 12 kg ही आता है? Of course not. So you may find that your weight, आजकल तो डिजिटल मशीन आई हुई है, so there as you can see in this video, in this photo, that the weight is shown here is 11.2 kg. तो हमेशा देखिएगा आपके जो डेली लाइफ में आप देखते हैं, चाहे आप वेट मेजर करें, and now in the next case if you are measuring a height, so you can see here the height is not exactly 100 but it is at above 100. So in that case always you may not get the pure whole number, so we may get the answer in decimals. So 100 point something, 100.6 or 100.7, जो भी होगा, you can say that is the height. Is it clear? Now students, what is decimal number? So a decimal is a fraction whose denominator is 10 or any power of a 10. So if you say 2 upon 10, so you can write this as in the decimal form as 0.2. So it is a fraction whose denominator is 10 or any power of 10. So any power of 10 means it may be 100 or it may be 1000. तो देखिएगा यहाँ पर जो फर्स्ट प्लेस है आपका, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नंबर हैव टू पार्ट, द होल नंबर पार्ट और द इंटीग्रल पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट विच आर सेपरेटेड बाय अ डेसिमल पॉइंट. सो जैसा कि आपने वहां पर प्लेस वैल्यू सिस्टम में पढ़ा था, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं प्लेस वैल्यू सिस्टम है आपका. तो यहाँ पर पहले आपने पढ़ा था वंस, टेंस, 100, 1000. इसी तरह अब आप देखेंगे डेसिमल के बाद जो फर्स्ट प्लेस होता है दैट इज टेंस, देन हंड्रेड्स एंड देन 1000. सो नाउ if you are telling 112.34, so 112 is what? So this is the whole number part and this is the decimal part. So 112.34, so you are writing it as 112.234. तो आप देखिएगा हमेशा इसमें आपने पॉइंट 112.34, it is 34. is it clear? So और इसको देखिएगा, इसको हम कहेंगे 112 and 3 tenths and 4 hundredths, 3 tenths and 4 hundredths. is it clear? तो इसमें ये आपने क्लास 6 में पढ़ा था हाउ टू राइट अ डेसिमल नंबर इन वर्ड्स. तो 112 पॉइंट के बाद जो भी नंबर होगा उसको आप सेपरेटली पढ़ेंगे. 112.34 और 112 and 3 is what? 3 tenths and 4 hundredths. Is it clear? Now here you can see ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, or if you are writing it in international system, then ones, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million, and so on. And after decimal point the first place is tenths, hundreds, 1000 and 10,000. Now how to कंपेयर टू डेसिमल नंबर. अब देखिएगा एक नंबर है
52.96 और एक नंबर है आपका 53.42. Is it clear? So which number is greater? So यहाँ सबसे पहले देखेंगे आप, first of all you have to see the whole number part. तो whole number part ये 52 है और ये 53 है. So which one is greater? 53 is greater. Clear? Now suppose if you have both the whole number part is same. Suppose I am getting 52.746 and here you are having 52.342. So here you can see the whole number part is same. Clear? But after the decimal देखिए फर्स्ट पार्ट जो है आपका 100 प्लेस पर यहाँ 7 है और यहाँ 3 है. सो विच वन इज बिगर? 7 इज ग्रेटर. इज इट क्लियर? और ये ग्रेटर क्यों है आप देखिएगा. 52 का मतलब क्या हो गया? 10 10 के 5 हैं और 1 1 के 2 हैं. तो 10 10 के आपके पास 1 2 3 4 5 ये जो 10 10 के कितने ब्लॉक्स हैं आपके? 5 हैं. सो ये 4 5 और 1 1 के कितने हैं आपके पास? 2 है. यहाँ पर भी सेम ही है लेकिन यहाँ 10th का जो पार्ट है 10th पार्ट दैट इज 7 एंड हियर 10th पार्ट इज 3. सो विच वन इज ग्रेटर? 52.746 इज ग्रेटर. अगेन इफ यू टेक 0.0003 and 0.03, so you can see the first of all you are seeing the whole number part. I have 0 here and 10th प्लेस पर भी सेम है. 100th प्लेस में आप देखेंगे यहाँ 3 है. सो दिस इज ग्रेटर. इज इट क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कंपेयर द टू डेसिमल नंबर. नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई a whole number by a decimal. So you have a whole number 2 and you are multiplying that 2 by a decimal number that is 0.5. तो वैसे भी आपको पता है 0.5 या आधा जो है half into 2 that is 1. Clear? So इसके लिए आपको क्या करना है? You just forget the point. First of all you just forget the point and write down 2 5s are 10. 2 5s are 10. और इसके बाद देखिएगा आप इसके काउंट करिएगा डेसिमल कितने के बाद है लेफ्ट से. अगर आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक प्लेस के बाद डेसिमल है. तो आंसर में भी आपको 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है. तो वी आर गेटिंग 1.0. इज इट क्लियर? नाउ इसी तरह अगर आप कोई और एग्जांपल लेंगे 3.72 मल्टीप्लाई बाय 2. सो 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 3 जा 6 प्लस 1 7. अब यहाँ कितने प्लेस के बाद डेसिमल है? 1 2. सो आंसर में भी 2 प्लेस के बाद डेसिमल आएगा एंड यू आर गेटिंग 7.44. इज इट क्लियर? नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई a decimal number by another decimal number. So here students you can see that you are multiplying 3.77 by 2.8. So if I multiply first of all the same thing you multiply as if there is no decimal. आप ये कहेंगे कि इसमें कोई डेसिमल है ही नहीं और आपने सिंपल ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ गया 10,556. So what you have multiplied? You have multiplied 377 by 28. Is it clear? And you have got this answer. अब देखिएगा अब आप इसमें डेसिमल लगाइएगा. यहाँ पर क्या कहाँ था डेसिमल? You had the decimal here and in this you had the decimal here. Now you just count after how many place you have the decimal. So 1 2 and 3. So here also you just put the decimal after 3 places and your answer is 10.556. Is it clear? So now suppose I am multiplying 3.2 with 2.5. So what I am getting? 5 to the 10, 15 plus 1 16, 2 to the 4 and 2 3 is 6. Is it clear? So you are getting 8. So 800 you are getting. Is it clear? 25 to the 50. Clear? 0 5 25 3 is 75 plus 5 80. So 800. Now just count the decimal. So 1 plus 1 2. So you just place the decimal after 2 point. So after 2 places. So what is the answer? Answer is 8. Now this is a very important part. How to multiply a decimal number by 10, 100 and 1000. So now you just see 673.234. Just let us take one simple example. I am taking a simple example और ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं 2.5 into 10.
तो अभी मैंने आपको बताया था जस्ट फॉरगेट द पॉइंट, और 10 into 25 दैट इज 250, और अब आप देखेंगे डेसिमल इज प्लेस्ड आफ्टर 1 पॉइंट, तो यहाँ भी आंसर आपका गया 25। तो इससे हमने सीखा इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 2.5 बाई 10 व्हाट आर गेटिंग 25। तो किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर बढ़ता है, और कैसे बढ़ता है अब आप इसमें देखेंगे, एक जीरो है तो यहाँ पर ये नंबर, ये जो पॉइंट है डेसिमल है, इट मूव टू द राइट, राइट मतलब वो नंबर बढ़ गया। तो यहां देखिएगा यहां पर एक जीरो है, सो द डेसिमल मूव्स, या ये नंबर बढ़ गया, तो आंसर यू गेटिंग 6732.34। एंड इफ यू मल्टीप्लाई द सेम नंबर बाय 100 तो क्या होगा आपका, द पॉइंट जो है डेसिमल इज मूव बाय 2 प्लेसेस, सो अब आपका क्या आ गया 2367323.4, 67,323.4। इज इट क्लियर? नाउ इफ यू आर मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय 1000, सो 1000 में कितने जीरोस हैं आपके, 3 जीरोस। तो अब आप देखेंगे 1 2 3, तो डेसिमल किसके बाद आ गया आपका 4 के बाद आ गया। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस इन डेली लाइफ रूटीन? अभी देखिएगा, अभी आपका वेट जो आया था दैट इज 11.2 kg। इज इट क्लियर? और 11.2 kg है। अब आप चाहते हैं कि मेरा जो आंसर है उसमें डेसिमल ना आए, एंड यू आर कन्वर्टिंग दिस इनटू ग्राम। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप, 1 kg इज व्हाट 1000 ग्राम। 1 kg किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो 11.2 kg में कितने ग्राम होंगे, सो दैट इज 11.2 इंटू 1000। तो अब आप देखेंगे यहां पर जो डेसिमल है आपका 11.2 का मतलब 200 इंटू 1000। क्लियर? सो अब डेसिमल कितने प्लेसेस के बाद मूव करेगा, यहाँ 3 जीरो है तो 1 2 3, सो 11.2 kg मीन्स 11,000 एंड 200 ग्राम, 11,200 ग्राम। तो 11 kg पूरा है और 200 ग्राम अलग से है। तो इसी तरह से आप किसी भी यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज यू आर कन्वर्टिंग 3.4 मीटर इनटू सेंटीमीटर, तो आपको मालूम है कि इन 1 मीटर वी हैव 100 सेंटीमीटर। सो इफ यू वांट टू गेट 3.4 मीटर इनटू सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा 3.4 इंटू 100, क्योंकि आप देखेंगे ये एक्चुअल में एक बैलेंस होता है, तराजू जो होता है उस तरह से है। तो जैसे आपका तराजू है, यहाँ पर अगर आपका 1 है तो यहाँ आपका 100 सेंटीमीटर है, तो आपने 1 को किससे मल्टीप्लाई किया 3.4 से, तो 3.4 1 जा 3.4। अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया 3.4 से तो यहाँ भी करना पड़ेगा, तो इसीलिए 3.4 मीटर जो होगा वो कितने सेंटीमीटर होगा 3.4 इंटू 100। तो अब देखेंगे 3.4 मीन्स 3.40 इंटू 100, और अब जो डेसिमल है इट मूव्स बाय 2 पॉइंट्स एंड यू आर गेटिंग 34000। सो दैट इज 340। आई हैव टू मूव द पॉइंट बाय, देखिए यहाँ पर जो डेसिमल है हमने मूव किया बाय 2 प्लेसेस, सो 33.4 मीटर इज 340 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? नाउ the next concept is how to divide a decimal number by a whole number. How to divide a decimal number by a whole number. So here you are dividing 2.35 by 5. तो देखिएगा फर्स्ट जो पॉइंट है आपका 2, तो 2 आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, सो यू आर प्लेसिंग हियर अ डेसिमल। सो अब क्या हो गया 23, सो 5 4 जा 20, again 3 is the remainder, so 35, 5 7 ja 35, so 2.35 divided by 5 is 0.47। इसका एक तरीका मैं आपको और भी बताऊंगा। तो इसमें देखिएगा 2.35 you are dividing it by 7। अब देखिएगा अभी जस्ट आपने पढ़ा था कि इफ यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 1000 तो आपका डेसिमल जो है वो कहाँ जाता है, डेसिमल मूव टू द राइट। इसी तरह अगर आप किसी भी नंबर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल हमेशा लेफ्ट में जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर अगर मैं इसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन के, इसको एक प्रॉपर होल नंबर के रूप में बना रहा हूँ, तो देखिएगा इसके लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, इसमें 2 बार डेसिमल मूव कर रहा हूँ, तो इसको मैंने 100 लिखा। अब आप इसको सिंपल डिवाइड कीजिए, 7 3 जा 21, 7
4 jar 20, 7, sorry, I was dividing it, I'm very sorry. So in this case, 7 3 is 21. If I have taken the different question, and here the question was different. Here the question was divide by 5. So let us take this one as I am just changing it so that I could show you the same answer. So 2.35 इसको आप डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो आपने डेसिमल 2 बार मूव किया. सो व्हाट यू गेटिंग 235 upon 100 into 5. Now this is 5 for the 20, 5 7 35. So you are getting 47 upon 100. और 47 upon 100 क्या होता है? देखिए, जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज बढ़ती है और जब डिवाइड करते हैं तो वो चीज कम होती है. तो 47 का मतलब क्या होता है 47.0, और जब हम उसको 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0.47. और ये आपको मैं आगे भी बता रहा हूं कि इफ वी आर डिवाइडिंग अ नंबर बाय 10, 100 and 1000 व्हाट वी आर गेटिंग. तो देखिएगा, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हाउ टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर. तो इसमें हम देख रहे हैं वी आर डिवाइडिंग 67.85 डिवाइड बाय 2.5. तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक आसान तरीका पिछली बार अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था. तो पहले हम डेसिमल को मूव कर रहे हैं बाय 2 पॉइंट. सो व्हाट आई एम गेटिंग 6785 अपॉन 100. इज क्लियर? इसी तरह नीचे आप देखेंगे, नीचे क्या आपका 25 है. तो 25 को 2.5 को हमने क्या, सो हियर इन दिस पार्ट यू कैन सी हियर 67.85 था, तो हमने इसको लिखा 6785. हमने डेसिमल को 2 बार मूव किया. सो आई हैव गॉट 67.85 है 6785 अपॉन 100. और यहाँ 2.5 था, इसमें हमने डेसिमल को एक बार मूव किया तो 25 अपॉन 10. तो अब आप देख रहे हैं कि 0 से 0 कट गया. सो व्हाट यू गेटिंग 6785 अपॉन 25 into 10. So now 5 5 is 25, 5 1 is 5. Is it clear? 5 1 is 5, 5 3 is 15, and 2 17. So 28, 5 5 is 25, and 5 7 is 35. Again 5 2 is 10, बचा 3. So 5 7 is 35. Clear? So 5 1 is 5. 5 1 जा 5 प्लस 2 7, तो 2 बचा, तो पॉइंट लगाया हमने 20 हो गया. 5 4 जा 20. सो व्हाट यू गेटिंग 271.4 डिवाइड बाई 10. और जब आप इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल एक बार डिवाइड करने में क्या होता है, वो चीज कम हो जाती है. तो व्हाट यू गेटिंग 27.14. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 and 1000. और ये मैंने आपको अभी बताया था कि जब आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं वो चीज कम होती है. तो डिवाइड किया हमने, तो व्हाट इज गेटिंग 251. यहाँ 2 जीरो हैं तो 25.10, और यहाँ 3 जीरो है तो 1 2 3. सो 2.51. इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे हम What is the use of this conversion in daily life routine? तो इसमें अभी हमने आपको करवाया था 11,000, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था 11,200 ग्राम. और अब मान लीजिए ये हमने अब उसको वापस उल्टा मान लिया, एंड आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू केजी. तो इस केस में आप देखेंगे 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम. तो 1 ग्राम, अब 1 ग्राम के लिए हमें निकालने के क्या करेंगे, हमने इसको 1000 से डिवाइड किया. और जैसा कि मैंने आपको बैलेंस का एक नियम बताया था कि इफ यू आर डिवाइडिंग दिस बाय 1000, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल मेंटेन करने के लिए हमें यहां भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो हियर आल्सो वी आर डिवाइडिंग बाय 1000. सो 1 ग्राम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1000 ग्राम किलोग्राम. So 11,200 gram. So that will be what? 11,200 upon 1000. Clear? तो अगर आप इसे 1000 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट इसमें कहाँ है 11,200.0,
और 1000 में कितने जीरो हैं? 1 2 3। तो अब आपका आंसर क्या आ गया? 11.2 kg। So this is how we use the concept of division of a number by 10, 100 and 1000 to convert one unit into another unit. So students, that's all for this session. Thank you and have a nice day.